Okay, doctors, as per NCERT, chapter 7 evolution, page number 126. Any doubt? Page number 126. Any doubt? Anyone? Origin of Earth. 127. Origin of Earth, origin of life. Any doubt? 126, No, 127. Any doubt? No, sir. Perfect. 127, 128. Urey-Miller experiment. Any doubt? No, sir. No. Asha, Sharanya, Lukesha, Siddhi, Aditi. Any doubt? No, sir. Perfect. No, sir. No. Page number 128, 129, Darwin's theory. Any doubt? Krishna, Priya, Prathamesh, No, sir. no, sir. Vedant. Okay. Page number 120, 129, 130, 131. All are evidences of evolution. Any doubt? Convergent, divergent, analogous, homologous, moth, No. England. Sir. Yes. Page number 131. Sir, paragraph number 2. The man has bred selected plants and animals for agriculture. वहाँ से. Just a minute. हाँ सरस्वती, which paragraph? Tell me. Sir, paragraph number 2. हाँ? यहाँ पे 4th line. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, the example dogs, but still are of the same group. It is argued that if within hundreds of years man could create I'm not getting that paragraph. So man has bred selected plants. Yes. उस Man has paragraph bred की 4th line. Yes, man has bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sports or security. Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breed that differ from the other breeds, example dogs, but still are of the same group. मतलब इसका कहने का कि इस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, ऐसा इस सेंटेंस से कहने का मतलब तो यह है कि जो डॉग्स हैं वो कहीं ना कहीं शायद एक ब्रीड का, जैसे मुझे भी लगता है, साइंस भी कहता है, लिटरेचर भी कहता है, जो फॉक्स होता है, मतलब कहीं ना कहीं जब इन कोर्स ऑफ ड्यूरिंग इवोल्यूशन, जब वाइल्ड एनिमल के साथ इंसान ने रहना सीखा या उनको अपने डिफेंस के लिए यूज करना सीखा या उनको अपने हंटिंग के लिए यूज करना सीखा या उनको अपना डोमेस्टिकेटेड बनाकर उनसे कैरियर की तरह उनका यूज करना सीखा, तो उस बीच ऐसी कई सारी ब्रीडिंग की वजह से शायद does it created a breed that differ from the other breeds, like example dogs, but still are of the same group, लेकिन ग्रुप उनका वही रहा. It is argued that if within hundreds of years man could create new breeds, could not nature have done the same over millions of years? तो ये कह रहा है कि क्या यदि ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग या इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ड्यूरिंग सिविलाइजेशन, यदि इंसान कुछ सालों में ऐसा कर सकता है, तो क्या आपको ये मानने में कोई दिक्कत है कि नेचर ने करोड़ों साल में से न जाने कितनी ब्रीड कर दी? संस्कृति. Yes, sir. परफेक्ट. Yes. चलिए, बहुत बढ़िया. Any more? चलिए, I hope there is no doubt. So page number 131, 132, that moth experiment is all done. Any doubt? 131, 132. Natasha, any doubt? Omkar, any doubt? No, sir.
वेद, विराज, वैभव, No, और कौन, विशाखा, एनी डाउट? no, sir. No, sir. No, sir. Page number 132, 133 is all done. If we learn together marsupials and placental mammals, then it is an example of convergent. Convergent. Yes, but if we learn it individually, then it is what? Divergent. Page number 134, I have shared that paragraph. A and B एक कल्चर में A को रखा, एक कल्चर में B को रखा, B को नहीं रखा, एक कल्चर में A को रखा, उसमें कुछ XYZ न्यूट्रिएंट दिया गया, न्यूट्रिएंट बदल दिया आपने, न्यूट्रिएंट कर दिया ABC, तो उसमें से मैक्सिमम मर गए, कुछ सरवाइव कर गए, जो सरवाइव कर गए वो ज्यादा बेटर एडाप्टिव थे, क्योंकि उनको वो नहीं भी मिला तो भी उन्होंने अपने आप को अडाप्ट कर लिया और वो ABC के साथ जिंदा रहने लगे। फिर आपने ABC बदल के उसमें LMN कर दिया न्यूट्रिएंट, अब LMN में कर दिया तो उसमें से कुछ नए डेवलप हो गए, C वेरिएंट हो गए, जो XYZ पे भी डेवलप नहीं, जो ABC पे भी डेवलप नहीं, वो LMN जैसे फूड पे डेवलप हो गए। सो इन दैट केस ये बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि लाइफ स्पैन छोटा होता है बैक्टीरिया केस में, वो स्टडी करना आसान होता है, बट दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बिकॉज एक लंबा और कॉम्प्लेक्स लाइफ स्पैन होता है। ओके, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ब्रांचिंग, डिसेंट वही रेडिएशंस अलग अलग अपने अपने फूड और हैबिटेट के लिए मूव करते हैं, दैट इज ब्रांचिंग, डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन वो है ही। इन सब की समरी ये दी गई थी कि नेचुरल सिलेक्शन एक मतलब इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस नॉट द एंड रिजल्ट। इवोल्यूशन इज व्हाट? अ प्रोसेस, इट इज नॉट द एंड रिजल्ट। और यदि वो प्रोसेस है तो वो चलती रहेगी, क्योंकि डार्विन साहब जो नहीं बता पाए थे दैट वाज अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो कहां जाकर रुकेगा नो वन नोस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फाइन, सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा। भाई जो सर्वाइव कर रहा है क्या वो सारे फिट हैं? और यदि ऐसा होता तो फिर बात वहीं के वहीं, कोई डिजीज जैसी तो चीज ही नहीं होनी चाहिए। तो वो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस। ओके, वो किससे इन्फ्लुएंस थे डार्विन साहब? Thomas Malthus. परफेक्ट परफेक्ट। उन सब में रिप्रोडक्टिव फिटनेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया था। 135 पर आपने मुझे बता दिया डिफरेंस बिटवीन ह्यूगो डी व्रीज एंड डिफरेंस बिटवीन ह्यूगो डी व्रीज एंड चार्ल्स डार्विन। और लास्ट जो हुआ था दैट वाज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एम आई राइट? Yes. Yes. मैंने आपसे कहा था कि अब मैं पूछूंगा आपसे वो ग्राफ, इज इट? Yes. हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये मैंने लिखवा दिया था स्टेटमेंट, एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If all the evolutionary, दिख रहा है इधर? Yes. If all the evolutionary what forces are constant and not applied to a Mendelian population, then what? Generation to generation, Will be no change in the gene. the in allelic frequency will remain, will not be changed, and therefore population is said to be Genetic equilibrium. Equilibrium. genetic equilibrium। ये लिखा था हम लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको लोकेशन हमने एक इक्वेशन भी दिया था, p plus q equals to 1, is it? Yes. मैं कर रहा हूँ p plus q square equals to 1, is it? Yes. p square plus 2pq plus q square equals to 1, is it? Yes. मैंने इसको एनालॉग करके बनाया था tt plus tt plus tt, is it? Yes. इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था कि दोनों इस पर क्या होना चाहिए, कैपिटल T, इज इट? Yes.
और इसका बताया था बच्चों कि इसमें दोनों पर क्या होना चाहिए, स्मॉल टी। परफेक्ट, परफेक्ट। Yes. इसके केस में एक कंडीशन ऐसी थी कि जहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी हो, या ऐसी स्थिति हो जाए कि पहले पे स्मॉल टी और दूसरे पे कैपिटल टी हो जाए। अंडरस्टूड? Yes, sir. अरे Yes, अंडरस्टूड? Yes. यहां पर कौन सा लॉ लगा था प्रोबेबिलिटी का? मल्टीप्लिकेशन। Multiplication. बहुत बढ़िया। और यहां पर कौन सा लगा, इन दोनों के बीच में कौन सा लगा था? Addition. Addition. Agree? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Yes, sir. एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। इफ डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दी गई है 0.6, व्हाट विल बी द ऑफ रेसेसिव? 0.4। 0.4. 0.4. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस? 0.4। 0.48. फैक्ट। अब यदि आपको ऐसे एक एग्जांपल शायद जेनेटिक्स के मॉड्यूल में था, लेट मी चेक, यदि कोई एग्जांपल मुझे मिल जाता है तो जस्ट मिनट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई एम नॉट गेटिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मॉड्यूल में बहुत सारे दिए गए होंगे, उसमें से आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको पहचानने का सिंपल सा तरीका बच्चों कि ये किसी ना किसी का यदि फ्रीक्वेंसी दी गई और नंबर दी गई, दो अलग अलग चीज, फ्रीक्वेंसी और नंबर। ये अलग फ्रीक्वेंसी है, नंबर पूछा जाता है तो उसका स्क्वायर करना होता है। ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हुए ना, फ्रीक्वेंसी हो सकती है बट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का टोटल 1 ही हो रहा है ना। 0.6 ये हो गया 8। ज्यादा हो रहा है सर, वो बस डोमिनेंट और रिसेसिव का हो रहा है एक बार। ये तो उसके सब कैटेगरी नंबर है बच्चों, ये नंबर है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी है 0.6, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.6 into 0.4 into 2, am I right? Yes. Am I right? Yes. Yes. देखते हैं वेदांत भाई, 36 चलेगा? Yes. अरे Yes. चलेगा? Yes. 0.48 चलेगा? Yes. Yes. 0.16 चलेगा? Yes. वेदांत भाई हाँ सर। समझे? यस सर। मतलब मेरा कहने का कि ये आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा नंबर है और कौन सी फ्रीक्वेंसी है दोस्त, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो लिखे गए थे ये नंबर, ये दो लिखे गई थी फ्रीक्वेंसी और ये लिखा गया था क्या, नंबर। तो होमोजाइगस के नंबर कितने हो गए? 0.36। होमोजाइगस के रेसेसिव के नंबर कितने हो गए? 0.16। और टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 1। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. तो ऐसे कुछ आपको क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन शायद मैंने जेनेटिक्स में बताया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, बट नो प्रॉब्लम। इस तरीके से हार्डी-वेनबर्ग के एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट प्रोवाइडेड कि आपको हार्डी-वेनबर्ग तब लगाना है जब लिखा हो कि पॉपुलेशन इज इन व्हाट, Genetic equilibrium. जेनेटिक इक्विलिब्रियम। then only this condition can be applied. If the population is not in genetic equilibrium, you cannot execute this p plus q equals to 1. Understood? Yes, sir. Yes, Perfect. sir. Perfect. Now there are three graphs given. Let me very clear.
and the diagrammatic representation of the operation of natural selection in different traits. Simple graph is given like this, x and y. और ये जो ग्राफ आपको दिया गया है, इसमें सबसे पहला ग्राफ जो बता रहा है phenotype favored by natural selection, medium size individuals are favored. नंबर ऑफ इंडिविजुअल वाई एक्सिस पर मैंने ले लिया और एक्स पर उन्होंने दिया है हाइट, एक्स पर दिया है हाइट। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, मान लेते हैं हाइट बढ़ाते बढ़ाते अपन यहां चल रहे हैं 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट 7 फुट 8 फुट, जो बहुत रेयर होता है 8 फुट, जो बहुत रेयर अपन हाइट को कंसीडर कर रहे हैं। तो नेचर जो सेलेक्ट कर रहा है आपके और मेरे जैसे 5.5 6 5.5 6, 5 से लेकर 6 तक की रेंज को नेचर सेलेक्ट कर रहा है। 5 से कम बहुत ज्यादा हाइट वाले नहीं देखने को मिलेंगे, या 4.5 से बहुत ज्यादा कम नहीं मिलेंगे, और 6 6.5 से एकदम बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो जो फेवर कर रहा है वो 5 to 6 फीट। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से बना दिया लाइक दिस, इसको कह दिया 5 फीट, बराबर। तो फॉर एन एग्जाम्पल वो 5 फीट को फेवर कर रहा है। अब ये किस किस तरीके से नेचर में चेंज आता है, नेचुरल सिलेक्शन के कितने फोर्स लग रहे हैं, वो 3 फोर्स बताएगा। प्लीज चेक, ध्यान दीजिएगा। नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके से कैसे काम कर रहा है। पहला ग्राफ उन्होंने दिया है, दैट इज स्टेबलाइजिंग। अब यदि यही ग्राफ स्टेबलाइज होता जाए, समझना ध्यान से, यही ग्राफ यदि स्टेबलाइज होता जाए तो क्या होगा। ये ग्राफ यदि स्टेबलाइज होता जाएगा बच्चों, तो जाहिर सी बात है मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ग्राफ नैरो होता जाए, ये जो डोम शेप है ये नैरो होता जाए। अभी क्या हो रहा है, 5 फीट से कम की भी मैं बात करूं तो 5 फीट से कम के भी लगभग इतने इंडिविजुअल्स हैं, इतने इंडिविजुअल्स हैं। मैं 4 फीट की भी बात मतलब 3 फीट की भी बात करूं तो 3 फीट के भी इतने इंडिविजुअल्स हैं। मैं 2 फीट की बात करूं तो कुछ हैं, मैं 6 फीट की भी बात करूं तो कुछ हैं, बराबर। यहां तो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज होता जा रहा है, मतलब नेचर बड़ा स्पेसिफिक हो रहा है कि 5 मतलब 5 फीट को ही सर्वाइव करे। यदि कोई 6 फीट वाला बच्चा जिसका पैदा होने का नंबर आ रहा है जो 5 से ऊपर जा रहा है, शायद नेचर उसको खत्म कर। ये हुआ होगा डायनासोर के केस में, ये हुआ होगा डायनासोर के केस में। इससे बड़ा ऑर्गेनिज्म इस धरती पे नहीं रह सकता। नेचर ने सिलेक्शन प्रोसीजर लगाई होगी और वो स्टेबलाइज किया होगा, और उस स्टेबलाइजेशन के दौरान मुझे ये समझ में आया कि पीक थोड़ा सा नैरो। सर देन व्हाट अबाउट ब्लू व्हेल्स, वो भी तो यस, ब्लू व्हेल की भी बात यदि मैं करूं दोस्त, तो नेचर सिलेक्शन कर रहा है, नेचर सिलेक्शन कर रहा है, डिपेंड करता है ना कि अभी वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव कर जा रहे हैं। ये रेप्टिलिया क्या हुआ, लैंड पर आ, और लैंड पर आकर तो इतना बड़ा शायद टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। अब ये भी अपने को नहीं पता, नो वन कैन प्रेडिक्ट कि ब्लू व्हेल का क्या होगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट हमारा क्या होगा। हमारा साइज रिड्यूस होता जा रहा है। हमारे एंसेस्टर्स और दादा दादी और परदादा लोगों को देखो तो आप अच्छा खासा शरीर और अच्छे बड़े बड़े सेहतमंद होते थे, हाइट भी ज्यादा होती। क्या आपको लगता है वेदांत हमारी हाइट रिड्यूस हो रही है? नहीं सर, एक्चुअली बढ़ रही है मुझे सर। हाइट रिड्यूस हो रही है सर। और हाइट रिड्यूस हो रही है। साइंस तो ये कह रहा है, मैंने जो आर्टिकल पढ़े हैं साइंस के ड्यूरिंग माय रिसर्च, क्योंकि मेरा सब काम इसी पर था, तो मेरा इवोल्यूशनरी ट्रेंड ही मैंने देखा था ना, पाथ इवोल्यूशनरी पाथ ही मैंने स्टडी किया था। तो साइंस तो ये कह रहा है, लिटरेचर तो ये कह रहा है कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ सालों मतलब डेफिनेटली अभी मेरा कुछ सालों कहने का मतलब हजारों साल हो सकता है, वी विल लाइक अ पंपकिन, हम एक पंपकिन की तरह होंगे। आज आप घर बैठ के सारा मार्केट, सारा आटा दाल पानी सारा कुछ आप घर पे बुलवा लेते हैं, पैरों की जरूरत कम पड़ गई। जो पैदल चलता था इंसान, जो दौड़ता था इंसान, वो साइकिल पर आया, वो गियर वाली गाड़ी पर, टू व्हीलर, अब तो बिना इंसान वाली गाड़ी पर भी आया। मतलब धीरे धीरे पैरों का इस्तेमाल कम। मैं जब सुनता था केवल कि हाँ ऐसा वॉश बेसिन में हाथ नीचे लगाओ तो पानी आ जाता है और हटाओ तो चला जाता है, वो सेंसर अब मैं देख रहा हूं, तो हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आप जाकर खड़े हो जाए तो पानी आ जाएगा। ऐसे भी सेंसर कुछ मेट्रोस के वहां लग चुके हैं, जहां आप जाकर यदि टॉयलेट और यूरिनल के लिए आप जाते हैं तो पानी अपने आप फ्लश में आता है, यानी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी। रहा सवाल आपको बोलने की,
तो एक बार आपने सेट कर दी फ्रीक्वेंसी तो मोबाइल भी अब आपकी आवाज पे काम करने लगा। तो पंपकिन में केवल आपकी आंखें रह जाएंगी और शायद बगल कैविटी रह जाए जो थोड़ा बहुत चबाने का काम करे, अदरवाइज तो डोज भी स्पाइरुलिना जैसी टैबलेट आ गई, जो 2-4 टैबलेट खा लो और मतलब स्थिति ऐसी हो जा रही कि न जाने का काम, न चलने का काम, न दौड़ने का काम, न एक्सरसाइज का काम, सिर्फ ब्रेन की तरह, पंपकिन की तरह रह जाएगा जो सारा काम उसी पर करने का, और शायद इसलिए उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाए। जो वो भी एक फेज आया था जहां उसकी कैपेसिटी कम होकर फिर बढ़ना शुरू, एक स्टेज आई थी जहां कम होना शुरू हो गया था। यानी हो सकता है कि अब ब्रेन का, क्योंकि इनोवेशन उतने नहीं बचे, अब ब्रेन एनालिटिकल ज्यादा है और इनोवेटिव कम। आज से कुछ सालों पहले, यदि मैं आज से 100 साल पहले भी कहूं तो इट वाज मोर इनोवेटिव, लेस एनालिटिकल। सारे इनोवेशंस मैक्सिमम हो चुके, अब इनोवेशंस कम, एनालिटिकल ज्यादा हो गया। तो इन दैट वे लिटरेचर मैंने पढ़ा था कि इट विल लाइक अ पंपकिन। तो अभी मैं ये समझ के चल रहा हूं कि यदि स्टेबलाइज हो रहा है, ये थ्योरी कह रही है किसको, दिख रहा है इधर, यस, ये कौन सा फोर्स लगा रहा है बच्चों, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन। दूसरा ग्राफ आपको दिया गया आई थिंक डायरेक्शनल। अब डायरेक्शन उन्होंने गलती ये की मेरे हिसाब से, उन्होंने डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में दे दी, तो ठीक भी है, इधर डायरेक्शन की बात की है। मैं दोनों ग्राफ बनाकर बताता हूं आपको क्यों उन्होंने दोनों नहीं दिए होंगे, क्योंकि दोनों यदि वो देते तो फिर वो नीचे वाले की तरह हो जाता। बट मैं आपको दोनों को क्लियर करके बताऊं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सेम रहेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और हाइट। और यदि ये ग्राफ ऐसा बना है तो मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ को इधर पे शिफ्ट कर दिया, यानी पीक शिफ्ट कर दिया, मैंने पीक शिफ्ट कर दिया। अब पीक शिफ्ट कर दिया मतलब ये जो नंबर, ऐसा भी कर सकता था मैं, ऐसा भी मैं कर सकता था, बट ऐसा करने पे गलत क्यों हो जाता वो, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैंने पीक शिफ्ट किया। ऐसा भी हो सकता है ना कि इस हाइट के कम के लोग सर्वाइव ही नहीं कर रहे हो ही ना, तो ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। मैंने ये जो दूसरा बताया दैट वाज व्हाट, डायरेक्शनल। मतलब मेरा कहने का कि हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर कुछ इस तरह का हो जाए, कुछ इस तरह का प्रेशर हो जाए कि 5 फीट तो छोड़ो, ये 5 फीट था, वो केवल फेवर करने लगे 4 फीट को, या गॉड नोस, क्या पता ऐसा हो जाए कि वो सेलेक्ट करने लगे 6 फीट को। तो इन द ईदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका ग्राफ फिर नीचे वाले की तरह नहीं होना चाहिए जो ये बताता है कभी 4 को सेलेक्ट करेगा, कभी 5 को, कभी 6 को, कभी फिर 5 को, कभी फिर 4 को। तो वो डिस्ट्रक्टिव टाइप का है थोड़ा सा। ये डायरेक्शनल है, ईदर डायरेक्शन, या तो हो सकता है 4 को सेलेक्ट करने लगे या वो 6 को सेलेक्ट करने, ऊपर वाला 5 को ही सेलेक्ट कर रहा है, मीन वैल्यू को ही सेलेक्ट कर रहा है। और तीसरा जो नाम दिया गया है डिस्ट्रक्टिव, जिसमें उन्होंने कुछ ग्राफ इस तरह से बना दिया, लाइक दिस। हो सकता है कि कभी वो, हो सकता है कभी वो इधर हो जाए, कभी इधर हो जाए। अब ये और ये बोल रहा हूं मैं, या इधर भी और इधर भी, कि या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं उधर हो गया तो फिर उधर ही, फिर इधर नहीं होगा। डिस्ट्रक्टिव में कैसा हो रहा है, कभी वो 6 को सेलेक्ट करता दिखता है, कभी वो 4 को सेलेक्ट करता दिखता है, कभी वो पॉपुलेशन में मीन हाइट वाले 5 वाले इंडिविजुअल रह जाते हैं, कभी 4 ही वाले रह जाते हैं। सो ये इन ईदर डायरेक्शन, इधर या उधर, ये इधर भी और उधर भी। अंडरस्टूड? तो ऐसा कोई कहलाता है डिसरप्टिव। तो ये नेचुरल सिलेक्शन के 3 उन्होंने पैटर्न दिखाए हैं। अब पढ़िए उस पेज को, पेज नंबर 137 137 का न्यूमेरिकल पार्ट मैंने आपको बच्चों बताया। 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. These are gene migration, gene flow. What is gene migration and gene flow? What is the difference? मैंने आपसे कहा
मैंने आपसे कहा जीन माइग्रेशन जीन फ्लो कि यदि एक कोई पॉपुलेशन में बनाऊं और इस पॉपुलेशन को मैंने हाइडी-वेनबर्ग पॉपुलेशन या मेंडेलियन पॉपुलेशन कहा, तो मैं कब कह सकता हूं? एक कंडीशन बताई थी मैंने, व्हेन आई कैन से मेंडेलियन पॉपुलेशन। एनीवन? जब स्पीशीज रैंडमली मेटिंग कर रहा है। परफेक्ट। A, B, C, D, E, F, G, H, I, they can match randomly. यदि वो रैंडम मैटिंग कर सकते हैं तो मैं उन्हें क्या कहता हूं? वो मेंडेलियन पॉपुलेशन। मेंडेलियन। ये भाई रैंडम मैटिंग कर रही है तो कुछ तो इवोल्यूशनरी फोर्सेस होंगे ना, जो इस पर यदि अप्लाई ना किए जाए तो ये इक्विलिब्रियम में रहे, लेकिन यदि उस पर अप्लाई हो जाए, लाइक मतलब मैंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से आपको बताऊं, लिटरेचर ये कहता है कि कॉकरोच की पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, देयर इज नो इवोल्यूशन। वो करोड़ों साल से जैसे हैं वैसे के वैसे ही, वो इतने वेल अडॉप्टेड हैं कि वो वैसे के वैसे ही, ऐसा लिटरेचर मैंने कहीं पढ़ा है, नॉट वेरी मच श्योर। तो दैट पॉपुलेशन इज इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन आप सोचिए ना कि वो कैसे, मुझे क्यों डाउट आता है, क्योंकि कैसे पॉसिबल है यदि कॉकरोच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यदि कॉकरोच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक इवोल्यूशनरी फोर्स तो बाय डिफॉल्ट लग रहा है, वेरिएशंस। यस और नो? मियोसिस जैसा एक फोर्स तो बाय डिफॉल्ट लग रहा है, जो कि सबसे बड़ा फोर्स है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के हिसाब से, मियोटिक ड्राइव। मियोसिस आएगा तो वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे तो एक्यूमुलेट होंगे, और एक्यूमुलेट होंगे तो सालों बाद जनरेशन कुछ अलग हो चुकी है। सो इन दैट वे हाइडी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एक बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच, बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच व्हिच इज प्रैक्टिकली टफ इन अ नेचुरल पॉपुलेशन और एनी नेचुरल इकोसिस्टम। वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, वो ओशियनिक इकोसिस्टम हो, या कोई भी इकोसिस्टम, थोड़ा सा टफ है क्योंकि आइडियलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि ऐसा होगा नहीं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हो और वेरिएशंस ना हो, क्योंकि गैमेट बनाने के दौरान मियोसिस होगा तो क्रॉसओवर होगा, और क्रॉसओवर होगा तो बेटर जीन सेलेक्ट होगा नीचे, तो नेचुरल सिलेक्शन तो लगेगा ही। इसलिए आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते इसकी दूसरा फोर्स नेचुरल सिलेक्शन कि ये फोर्सेस ना लगे, बट आइडियलिस्टिक स्टडी करने के लिए बताया जाता है if all the forces are constant then there will be no change in allelic frequency, and if do so the population set to be in genetic equilibrium and then p plus q equals to 1। उसकी डोमिनेंट रेसिस्टिव एलिलिक फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होना चाहिए? 1, तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब उसमें कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, फैक्टर दिए गए लाइक जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। एक या दो जीन यहां से माइग्रेट करके किसी और पॉपुलेशन में चले जाते तो वो जीन माइग्रेशन, बट 10-15 जीन या 10-15 जीन कैसे जाएगा, मतलब स्पीशीज जाएगी ना, 10-15 ऑर्गेनिज्म चले गए तो दैट इज जीन, यानी मासिव जीन माइग्रेशन इज जीन फ्लो। एक या दो जीन या एक या दो कैरेक्टर का जाना माइग्रेशन, भरपूर का जाना जीन। तो वहां लिख लेना चाहिए आपने, जीन माइग्रेशन 1 or 2 जीन, मूवमेंट ऑफ 1 or 2 जीन। and massive migration is flow, massive migration is flow। noted doctors? यस सर। अब यदि बच्चों में बात करूं आगे की तो और दिया हुआ है जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी वहीं लिखवाऊंगा। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये हालांकि शायद मैंने जेनेटिक्स में बताया हो, बट स्टिल जेनेटिक ड्रिफ्ट ऐसी होती है बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कभी कभी ऐसा हो जाए कि मैंने क्या किया, ए डी एफ और एच इनको काट के अलग कर दिया, बी सी ई आई जी। 2000 around, I think at the time of your birth, I'm not very much sure the year, 2006 or 7, I'm not sure, but एक बड़ा अर्थक्वेक आया था और कन्याकुमारी में जो विवेकानंद रॉक है वो अपनी जगह से 3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि जो विवेकानंद रॉक है वो 3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। अब आप समझ रहे हैं 3 सेंटीमीटर यदि मैं इतना भी पकड़ता हूं, इतना भी 3 सेंटीमीटर यदि मैं पकड़ता हूं, पर ठीक है बहुत ज्यादा ना पकड़ूं तो भी यदि मैं
आई शुड से इस कैप के बराबर में यदि मैं पकड़ता हूं तो भी मैं समझता हूं यहां पर एक नया हैबिटाट एक्सपोज हो गया। अभी तक जो जगह किसी को रहने के लिए नहीं थी वो 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट होने से अच्छा खासा वहां पर एक स्पेस बन गया होगा जहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, जहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड एरिया था वो एक्सप्लोर्ड होने लगा और कुछ उस एरिया के उधर और कुछ उस एरिया के इधर, उस 3 सेंटीमीटर के बीच में जो नए ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो कहां से आए होंगे? तो इधर के कुछ ऑर्गेनिज्म को लगा होगा रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, अनएक्सप्लोर्ड है, तो रिसोर्सेज खाने को ज्यादा मिल रहे होंगे तो वो भी माइग्रेट कर गए। उधर से कुछ सोच रहे होंगे कि इधर पे ज्यादा है तो वो भी माइग्रेट कर गए होंगे। और इसके रिजल्ट में इवेंचुअली हुआ ये, उधर B is beyond mu, उधर से आया A, इधर से आया B, और अब कुछ सालों में A और B मैटिंग करने लगे जो आज तक कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि विवेकानंद रॉक की वजह से वहां पर एक एरिया, मतलब वहां पर कोई उनके लिए बैरियर था। तो उधर वाली स्पीशीज अपने तरीके से डेवलप हो रही थी X टाइप से, इधर वाली अपने तरीके से डेवलप हो रही थी Y टाइप से। अब जब वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया मिला तो अब स्पीशीज डेवलप होने लगी XY तरीके से, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, नेचर की वजह से। नेचर ने इतना भारी अर्थक्वेक लाया कि वहां से शिफ्ट हुआ, कुछ एरिया एक्सप्लोर्ड हुआ, अनएक्सपोज एक्सपोज हुआ तो वहां स्पीशीज माइग्रेट की, और जब वो साथ में डेवलप होने तो लगा कि हाँ यस वी कैन मेट, हम मैटिंग कर सकते हैं। वो X और Y मैटिंग हुई, तो XY टाइप की नई स्पीशीज आई जो आज तक नहीं आई। मतलब मेरा कहने का कि यार अब वो XY स्पीशीज कुछ सालों बाद इतना इवॉल्व हो गई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, भारी कंसेप्ट बता रहा हूं। X और Y इतना भारी डेवलप हो गई कि वो अब X से मैटिंग ही नहीं कर रही, जिससे वो बनी थी, जो एक्चुअली ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, उससे मैटिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि इनमें इतना मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए कि वो X से भी मैटिंग नहीं कर पा रही और वो Y से भी मैटिंग नहीं कर पा रही। यानी अब XY और X या XY और Y, इनके बीच में एक बैरियर आ गया। मूवमेंट कर रहे हैं, फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, दिखने में थोड़ा बहुत जैसे ही दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, but they are unable to mate. Such species which are morphologically similar, नीट का कंसेप्ट पकड़ा मैंने, KVPY का कंसेप्ट। Such species which are morphologically similar but reproductively isolated are known as sibling species. Repeating a statement after, first focus on understanding. भाई हमारा साइंस तो ये कहता है, हमारा धर्म तो ये कहता है, मैटिंग एंड मैरिजेस आर नॉट अलाउड इन सिबलिंग्स। भाई बहन दिखने में समान है, सेम क्रोमोसोम, सेम डीएनए कंटेन, सेम मदर फादर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। देयर इज अ हिडन बैरियर, वो कोई लाइन नहीं बनी वहां पर, कोई रेखा नहीं बनी है वहां कि ये दो ऑर्गेनिजम्स मैटिंग नहीं कर सकते ऑफ द सेम स्पीशीज, जो साइंस कहता है कि वो किया जाना चाहिए। बट सिंस दे आर सिबलिंग्स, देयर इज अ हिडन बैरियर, देयर इज अ बैरिकेड। व्हाट? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या है? हिडन ड्रिफ्ट है। जेनेटिक आइसोलेशन हो चुका है। आइसोलेशन ऐसा हो गया कि यदि वही सिबलिंग्स के बीच में मैटिंग होती रही तो हार्मफुल और रेसेसिव जीन एक्सपोज हो जाएंगे। जो मदर फादर के रेसेसिव जीन थे, जस्ट इमेजिन, मदर फादर के जो रेसेसिव जीन थे, जिन्हें नेचर धीरे 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 एलिमिनेट कर रहा है अपनी स्पीड से, आपने सिबलिंग्स यानी ब्रदर सिस्टर के बीच में मैरिज करा के वो जो अनएक्सपोज्ड पड़े थे, जो रेसेसिव पड़े थे, उसको चांस दे दिया होमोजाइगस कंडीशन में आने, और रेसेसिव बन के किलर बन गए। और इसीलिए नो वन शुड टेक इट अदरवाइज, आई एम just try to grab it as a concept. It's not any blame on a community, but what the science is saying, what the data is saying, कि क्यों मुस्लिम कम्युनिटीज में थैलेसीमिया सबसे प्रोन है। मुस्लिम कम्युनिटीज में मतलब थैलेसीमिया के लिए सबसे प्रोन कम्युनिटी यदि कोई है तो मुस्लिम कम्युनिटी, बिकॉज दे यूजुअली प्रेफर द मैरिजेस इन देयर कम्युनिटीज ओनली। और बच्चों इसकी वजह से पारसीज खत्म हो गए, गुजरात से पारसीज खत्म हो गए। मतलब अब बचे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बचे होंगे, बट उनकी कम्युनिटी एंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह हो, बिकॉज एट अ मोमेंट
Parsis were never allowed their marriages outside their communities. उसी में तो जो थैलेसीमिया का जो रेसेसिव जीन था, जो कैरियर हो सकता है, केवल अफेक्टेड नहीं होगा, वो दो कैरियर को मिला दो तो क्या होगा? अफेक्टेड इंडिविजुअल विल गॉन, affected. और अब यही स्थिति हो, इसीलिए साइंस तो इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि वो दो बहुत डिस्टिंक्ट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से आए होंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब एक वेस्ट बंगालियन की शादी आप गुज्जू भाई से करवा दें, किसी गुज्जू भाई की शादी आप महाराष्ट्रियन से करवा दें, एक किसी महाराष्ट्रियन ग्रामीण की शादी आप केरलियन से करा दें, एक किसी केरलियन की शादी कश्मीरियन से करा दें। सी आप देख रहे हैं कितना बेटर एडेप्टिव वो होगा। होगा दोस्तों, यार निकलेगा वो किसी भी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने लायक होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नेचर हमेशा बेहतर को सेलेक्ट करता है। डिड यू एग्री विद दिस? Sir, is this the reason Yes, that foreigners are more adaptive to the nature, something like that? What? Sir, so can we say that the Americans or the Europeans are better adaptive to the changing environment? आपको लगता है कि अमेरिकन और यूरोपियन जो है वो हाइब्रिड है सारे के सारे? Is it? yes. Sir, because they don't they do not marry in close relations. See, सबसे पहली चीज तो ये समझे वेदांत भाई, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, मतलब केस जब भी शादी का नंबर आएगा तो मुझे बताने का, मैं मम्मी से बात करूँ, डोंट वरी अबाउट जो मिले उधर पे, मतलब अपनी कम्युनिटी को छोड़ के करने का दोस्त। द रीजन इज अपनी कम्युनिटी तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत क्लोज रिलेशन में होता क्या है, मतलब एक मिसकंसेप्शन है अपने हिंदुस्तान में, लिटरेसी और साइंस, मतलब मिथ और साइंस, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है हिंदुस्तान। आज भी शादी के लिए लड़कियां देखने निकलते हैं या लड़की वाले लड़का देखने निकलते हैं तो वो ताईचा मुलगा आहे का, तो मावशीच्या ओळखीचा आहे का, तो मावशीची चुलत बहिणीचा मुलगा आहे का। अरे काय को चुलत कर रहे भैया उधर पे, वो सबके छोड़ को आप कम्युनिटी के बाहर जाओ ना, क्या होगा? वो जो डेस्टिनी वो तो होना ही है। काय को जान पहचान ओळख काय का ओळख, क्या होता है ओळख वाले से? कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं आता। क्योंकि क्या होगा, वो जो रिलेशन में आप देखोगे ब्लड रिलेशन में, तो वो जो जीन सप्रेस रहे होंगे अभी तक, सडनली आप उनको मौका दे रहे हो क्या होने का? एक्सप्रेस होने का। तो ये तकलीफ हो सकती है। अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसीलिए यूपी में, हर्षल भाई मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? मन खुश हो रहे हैं आप लोग? हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। मन में लड्डू फूटा। प्रथमेश जादव सुन रहे हैं? Yes, sir. ओके। तो यूपी में कितना होता है ऑनर किलिंग? जबरदस्त ऑनर किलिंग होता है, मतलब लाश लटका दी जाती है, रातों रात लटका दिया जाता है। यदि कोई कहीं पर लव मैरिज का समझ में आया, पता लगा कि ये इस कम्युनिटी का है, उसने उस कम्युनिटी से शादी कर ली, खाप पंचायत। और अभी कल परसों से, पिछले कुछ हफ्ते से न्यूज़पेपर में आ रहा था, एक नासिक का ही केस हो गया था, मुस्लिम और ब्राह्मण का मैरिज, और उसको फिर छगन भुजबल साहब को हस्तक्षेप करना पड़ा। यानी बहुत सारे ऐसे बजरंग दल और ये दल और वो दल, मतलब बड़े खाली बढ़िया टाइम वाले लोग बहुत है अपने। साइंस नहीं देखेंगे उसके पीछे का कि वो जरूरी है, अदरवाइज अपने इसमें करते रहे तो मैं और आप क्या, मैंगो प्लांट इनब्रीडिंग डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जो अपन ने जेनेटिक्स में पढ़ा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। राइट प्रिया मैडम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो मतलब मेरा कहने का कि यहाँ पर मैं जिस बात के लिए बता रहा था, जेनेटिक ड्रिफ्ट से इतना लंबा मैं चला गया। ड्रिफ्ट मतलब एक ऐसा हिडन बैरियर जो दो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करता है और मैटिंग को अलाउ नहीं करता, दैट इज ड्रिफ्ट। तो मैं डेफिनेशन लिखवा दूं आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट की, डैश करके लिख लीजिए एनसीईआरटी में। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रिप्रोडक्टिव बैरियर। सर सिबलिंग स्पीशीज का क्या बताया था आपने? is a reproductive barrier, genetic drift में लिखिए, it is a reproductive barrier which
created by chance by any natural selection force. फुल स्टॉप लगा के नोट करके लिखेंगे द स्पीशीज, पेजेस अटैच किए तो वहां लिखिए, ठीक है लिखिए एनसीईआरटी में द स्पीशीज that are reproductively isolated but morphologically similar are known as what? Siblings. Sibling Sibling species. species. लिखा है इसमें आगे the new gene are added to the new population and these are lost from the old population. There would be a gene flow if the gene migration happens multiple times. If the same changes occur by chance, it is called genetic drift. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. इतना ज्यादा आ जाता है कि स्पीशीज ही अलग बन जाता है. जीन फ्लो करने से वो जो 3 सेंटीमीटर का एरिया मैंने बताया, वहां पर जो स्पीशीज जाएगी वो इतना कुछ सालों में चेंज हो जाएगी कि ओरिजिनल पॉपुलेशन जैसी लगेगी नहीं. The original drifted population becomes founder and the effect is called the founder effect. अब in general एक बॉटल में वाटर बॉटल लाता हूं, मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको फाउंडर इफेक्ट क्या होता है. सी, अभी मैं जहां पर बैठा हूं मेरे अलावा कोई पॉपुलेशन दिख रही है आपको? No. नहीं. No, sir. No, मैं- sir. मैं एक छोटी सी पॉपुलेशन को वहां पर लाता हूं, मेरे इसमें ओवरलैप किया किसी ने, देखिए अभी आ रही है पॉपुलेशन. कैन यू सी वन मोर ऑर्गेनिज्म इज देयर? Yes, sir. Yes. परफेक्ट. Yes. अब क्या हुआ, यहां पर बाय एनी मींस मैं यहां से चला गया, मैं यहां से लगा मतलब मैंने माइग्रेट कर दिया, मेरा माइग्रेशन हो गया. मेरे माइग्रेशन के बाद एक वहां पर नई स्पीशीज आई, वो ये वाली. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको लगा कि यहाँ पर यार रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, कंडीशंस फेवरेबल होती जा रही है, ये ग्रोथ करती गई और इसने इतनी ग्रोथ कर ली. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शुरू हुई थी इससे, यस और नो? Yes. हाँ. इतना बढ़ता गया, स्टेबल हो गई यार, अच्छी खासी स्टेबल हो गई. यस और नो? Yes, sir. Yes, So sir. Yes. this species is founder species, pioneer species. This species is founder, pioneer. Perfect? Yes or no? Yes. 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 अब क्या हुआ बच्चों, लेकिन अब क्या हुआ कि इसकी खुद की पॉपुलेशन इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर बन गई, जैसा कि इंसानों के साथ हो रहा है. हमारी खुद की पॉपुलेशन हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर बन गई. इतना ओवर क्राउड हो गया है अर्थ पे कि अब इंसान ही इंसान के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर का काम कर. रिसोर्सेज उतने नहीं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है. इन्होंने इतनी बढ़ाई क्योंकि रिसोर्सेज मिल गए तो बढ़ते गए, अच्छे खासे स्टेबल हो. और जब ये स्टेबल हो गए तो इनकी ही पॉपुलेशन के लिए लिमिटिंग फैक्टर बन गई, रिसोर्सेज कम पड़ने लगे और फिर ये धीरे धीरे कम होने लगे. अंडरस्टूड? Yes. 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 क्योंकि यहाँ वालों को समझ में आया कि यहाँ पर रहने से मतलब नहीं, यहाँ पर मरने वाले हैं सब. वो यहाँ से कहीं और माइग्रेट करने वाले, वो यहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरे एरिया में जाने वाले, तो वहां फिर बढ़ने वाले. यस और नो? Yes. 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 ये वहां के लिए फाउंडर हो जाते. यस और नो? Yes, sir. फिर इसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जाती, इसी के लिए लिमिटिंग बन जाती. इसलिए ऐसे किसी साइकिल को नेचर कहता है बॉटल नेक इफेक्ट. पहले फाउंडर होगा, फिर यदि उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं रखा तो बॉटल नेक इफेक्ट आएगा.
और यदि बॉटल नेक इफेक्ट आ गया तो वो पॉपुलेशन वहां से खत्म, फिर वो दूसरी जगह जाएगी, फिर वो ग्रो करेगी, फिर वो स्टेबल हो जाएगी, फिर एक बॉटल नेक आएगा, फिर वो वहां से सब खत्म, फिर वो दूसरी जगह जाएगी। इस तरह से नए नए हैबिटाट एक्सप्लोर होते रहते हैं और नई नई स्पीशीज आती है। अंडरस्टूड? सर मतलब ह्यूमंस का बॉटल नेक इफेक्ट हो गया है क्या? आएगा, आएगा दोस्त, आएगा, बॉटल नेक इफेक्ट आएगा। और आप वो समझो, मैं बताऊं, किसने पूछा सवाल? यश का कुछ थे सर। यश का कुछ। यश भाई, ऐसा है कि बॉटल नेक इफेक्ट कुछ एरिया में आ गया हो, और मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान और कंधार में ये स्थिति आ गई, वहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एक पूरा पूरा लैंड खत्म हो गया है। अभी मैं आपको बताऊं तो इजराइल और गाजा पट्टी के वहां का जो एरिया था, पूरा पूरा लैंड खाली हो गया, नो ह्यूमन स्पीशीज इज देयर। क्यों? क्योंकि वो माइग्रेट कर गए, वहां सर्वाइव नहीं हो पा रहे, उनकी ही पॉपुलेशन के लिए खतरनाक हो गई। इतना ओवर क्राउड हो जाएगा कि किसी दिन इंडिया और चाइना भी, चाइना ने पॉलिसी देखी क्या की थी, चाइना के तो रूल्स इतने तगड़े होते, चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी रखी थी, पॉपुलेशन इतनी ड्रास्टिकली कंट्रोल की उन्होंने कि अब वो जिनके 2 बच्चे हो रहे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। मतलब ऐसी स्थिति होती है। हाँ, फिर ये कोरोना वायरस मतलब बॉटल नेक इफेक्ट को कम करने तो ने आया, मींस लाइक रिबूट हो गया होगा आई थिंक। कोरोना तो भैया, कोरोना तो एक नेचुरल सिलेक्शन है, समझ के चल, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो रह जाए। ये लाया तो इंसान को खत्म करने के लिए ही है। चाइना ने, अब मैं नहीं कहना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसा, बट जो कोरोना वायरस आया है, वो कोरोना वायरस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे और कई सारे वायरस आते रहे। परफेक्ट। बट मैं अब डेविड नहीं हूंगा, मुझे बस ये बताइए, बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, फाउंडर इफेक्ट बिल्कुल क्लियर है। जहां पर कोई स्पीशीज नई हैबिटाट में जाएगी, न्यू हैबिटाट में, वहां पर ग्रो करना शुरू करेगी, दैट इज फाउंडर। यदि कंट्रोल मैनर में नहीं बढ़ी, अनकंट्रोल बढ़ती रही, वो स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल होने के बाद उसकी पॉपुलेशन उसके लिए लिमिटिंग बन जाएगी और एक बॉटल नेक इफेक्ट आएगा, और बॉटल नेक इफेक्ट आने के बाद वो एरिया खत्म, फिर वो दूसरे एरिया पे माइग्रेट करेगी। तो जीन माइग्रेशन ऐसा होता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. यस और सर। बस यही सब उसमें दिया गया है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, acquire mean character value, directional change, more individuals acquire value other than the mean value, or the disruption, more individual acquire peripheral character value at both the ends of the distribution curve. Understood? Yes. बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए कितना लॉजिकल चैप्टर था, लोगों को लगता है बायोलॉजी में लॉजिक ही नहीं, पूरा इवोल्यूशन दिमाग का दही कर देता है। इवोल्यूशन और इसको जब इकोलॉजी से जोड़ा जाए तो माशाअल्लाह। मतलब कोरोना एक एग्जांपल है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचुरल सिलेक्शन का। कोरोना एग्जांपल नहीं है दोस्त, कोरोना तो एक नेचुरल सिलेक्शन है, उसमें आपका जिसका इम्यूनिटी बेटर है वो सरवाइव करता है, और वो प्रोसेस तो हमेशा ही चलते रहती है। ये एग्जांपल की जरूरत नहीं है, हमेशा ही चलती रहती है। तेज बारिश हो गई, आपको क्या लग रहा है, ये जो अभी कोल्हापुर और इधर पे जो तेज बारिश हुई, न जाने कितनी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई, खत्म हो गई होगी दोस्त। कई सारे ऑर्गेनिज्म जो पैदा होने के पहले ही एग्जिस्टेंस शुरुआत की होगी उन्होंने सर्वाइव करने की, और खत्म हो गए हो। ऐसे तो आए दिन होता रहता है, हर सेकंड होता रहता है। न जाने अभी कितने वायरसेस घूम रहे होंगे, न जाने कितने बैक्टीरिया खत्म हो रहे होंगे, ये तो चलता ही रहता है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस। ओके सर। हाँ सर फिर वो प्लेग आया था, वो भी नेचुरल सिलेक्शन था क्या? ये फिर वही की वही बात, तुम लोग कौन पूछा? अरे कौन पूछा? अथर्व गांगुली सर। अखर, मैंने कहा ना बेटा, प्लेग हो, जीका वायरस हो, मीका वायरस हो, और न जाने कौन कौन से वायरस हो, बैक्टीरिया हो, यदि किसी की वजह से इंसानी मौतें हो रही हैं तो डेफिनेटली वो नेचुरल सिलेक्शन का ही प्रेशर है ना अथर। अरे अंडरस्टूड? यस सर। कोई भी एक, मैं बता रहा हूं डेली बेसिस पे चल रहा है भाई। वायरस की क्या बात कर रहे हो? मैं बोल रहा हूं अभी तेज धूप तपने लगे तो, टेम्परेचर 50 डिग्री चले जाए और 2-4 बुजुर्ग निपट जाए तो होता ही हो। लू की लपेट से निपट गए 2-4, नागपुर और विदर्भ में तो भारी मरते हैं ऐसे लू से, सनस्ट्रोक से ही निपट जाते हैं लोग, तो क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में ये सब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं बॉटल नेक इफेक्ट है। नेचुरल सिलेक्शन आया, तेज गर्मी, निपट गए। जो टॉलरेट कर पाए वो सरवाइव करेगा, उसकी जनरेशन आगे बढ़ेगी।
जो नहीं कर पाएगा और शादी के पहले ही नहीं पड़ेगा तो क्या करोगे? तो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। अंडरस्टूड? यस सर। पेज नंबर 138 139 138 और 139 पर दोस्तों दो कंपैरेटिव वो दिए गए कि पिछले पूरे करोड़ों साल के यदि मैं डिवाइड करूं तो उन्होंने बनाए कुछ एरास, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सीनोजोइक। सबसे पुराना है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक मतलब जहां से फॉसिल मिलना शुरू हुए। उसके पहले भी था आर्कियोजोइक, उसके पहले भी था आर्कियोजोइक, बट उसके कोई फॉसिल अपने को नहीं मिले तो अपन उसके एंसेस्ट्रल्स और मान लिए। तो तीन मेजर हुए, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। एरास मतलब महायुग, जैसे अपना सबसे पहला सतयुग, फिर भगवान श्री राम का त्रेता युग, फिर मुरारी, कृष्ण मुरारी जी का अपना द्वापर युग, और आप जैसे राक्षसों का कलियुग। अरे समझ रहे हैं काकुस्ते साहब? ओके, तो यस सर। तीन मेजर एरा हुए। अरे कोंकणी सुन रहा है तू? अरे कोंकणी सुन रहा है मेरे भाई? राक्षसों की भरमार है यहाँ पर, कली कली है, इसलिए तो नाम पड़ गया कलियुग। नो प्रॉब्लम। तो ये चार बड़े बड़े युग, और इनका एक एक युग मतलब हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों साल। फिर उनके कुछ होते हैं सेंचुरीज, फिर उनके कुछ होते हैं डिकेड्स, और फिर उनके कुछ होते हैं डेज, फिर उनके कुछ होते हैं मिनट और सेकेंड्स। ऐसा एक टाइम पीरियड होता है। अपन बात कर रहे हैं उन महायुगों की, बराबर? तो वो है तीन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। फिर उसके कुछ पीरियड जो कुछ 100 सालों के रहे होंगे, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी। और हम जिसमें रह रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट सीनोजोइक, हम जिसमें सर्वाइव कर रहे हैं वो सीनोजोइक। पैलियोजोइक के कार्बोनिफेरस में दिख रहे हैं उधर पे अर्ली रेप्टाइल्स। कंपेयर करो दोनों पेज पर, दोनों पेज पर कंपेयर करो। लेफ्ट वाले पर पीरियड दिए गए तो टाइम नहीं दिया गया, राइट वाले पर टाइम पीरियड दिया गया। MYA मींस मिलियन ईयर्स एगो, 350 मिलियन ईयर्स एगो अर्ली रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो, मतलब सिलुरियन और डिवोनियन के पहले। कार्बोनिफेरस में जो कि 300 मिलियन ईयर्स एगो था, साइनेप्सिड और सौरोप्सिड टाइप के कुछ रेप्टाइल्स थे, साइनोप्सिड्स और सौरोप्सिड्स। और जिन डायनासोर्स को हमने देखा वो टर्शरी तक आते आते खत्म हो गए। देखो 50 मिलियन सबसे टॉप पे, 50 मिलियन ईयर्स एगो वो जो दौड़ने वाला दिख रहा है ना डायनासोर, वो खत्म हो गए 50 मिलियन ईयर्स एगो। अब मजे की बात देखो, कंपैरिजन कैसे देखना है। स्नेहा मैडम, 50 मिलियन ईयर्स एगो जिस डायनासोर के खत्म होने की बात कर रहे हैं वो पीरियड कौन सा लिखा है? Mesozoic. अरे टर्शरी, Cenozoic. नहीं राइट वाले में देखिए टर्शरी लिखा है, बराबर? Yes, sir. अब जब टर्शरी, तो कितनी मजे की बात है। देखो जब वो डायनासोर्स खत्म हो गए तो डायनासोर के खत्म होने के बाद ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स डेवलप हुए। उनका गोल्डन पीरियड लेफ्ट वाले पेज पे देखो, उनका गोल्डन पीरियड ही टर्शरी की बात शुरू हुआ, मोनोकॉट, डाइकॉट, फ्लावरिंग प्लांट्स। इज इट? इज Sir. इट? तो क्या ये Yes, इस बात sir. का प्रमाण नहीं है? देखो लॉजिक देखो कितना जबरदस्त लगा। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है ओमकार भाई, डॉक्टर भंडारकर, कि मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स वर वेजिटेरियन? Yes, यस यस सर। क्योंकि यदि वो वेजिटेरियन नहीं होते दोस्त तो ये तो पहले भी ग्रो हो सकते थे, ये तो पहले भी ग्रो हो सकते थे ना। और एक मजे की बात, और एक मजे की बात आपको बताऊं, ये जो फर्न्स के प्लांट हैं, हॉर्सटेल प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, ये सबका भी गोल्डन पीरियड आया है सीनोजोइक में, क्योंकि इनके इतने बड़े बड़े पैरों के प्रिंट गिरते थे। ये फर्न वर्न के तो प्लांट कभी डेवलप ही नहीं होगा। ये यदि पृथ्वी पे चलते भी रहे होंगे तो फर्न और मॉस तो ऐसे ही दब गया होगा, ब्रायोफाइट बायोफाइट। जो बच गए होंगे थोड़े बहुत एक्वेटिक बच गए होंगे, क्योंकि ये लैंड पर आ चुके। साइंस तो ये भी कहता है दोस्त, ये वापस एक्वेटिक सिस्टम में गए बचने के लिए। साइंस तो ये भी कहता है कि अर्ली रेप्टाइल जो लैंड पर आने की कोशिश कर रहे थे, पाइसेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स लैंड पर आने की कोशिश की ना, ये वापस चले गए पानी में और फिश की तरह डेवलप हुए, बड़ी फिश की तरह, जायंट फिश की तरह। तो जब एक सवाल आया ब्लू व्हेल, गॉड नोस क्या हुआ होगा, कोशिश की होगी बाहर आने की,
फिर इनके एंसेस्टर वापस चले गए क्योंकि टेम्परेचर ये टॉलरेट नहीं कर। रेप्टाइल आज भी देखो, क्रोकोडाइल को कभी तुम देखोगे तो अपनी आधी शेफ्टी तो पानी में ही रखता है, वो टेम्परेचर टॉलरेट ही नहीं कर सकता, आधा पानी में डूबा दिखेगा, नहीं तो मॉइस्ट एरिया में तो दिखेगा ही दिखेगा, आपको लैंड पे से यूजुअली नहीं दिखेगा क्योंकि रेप्टाइल टॉलरेट ही नहीं कर सकते टेम्परेचर। तो साइंस ये कहता है कि ये वापस भी गए होंगे। मतलब ये दोनों को कंपैरिजन पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको, तबीयत मस्त हो जाएगी। इधर पे यदि मैं कहूं आपसे तो देखेंगे आप पर्मियन पीरियड में, पर्मियन पीरियड 250 मिलियन ईयर्स एगो, राइट हैंड पेज, पर्मियन पीरियड में 250 मिलियन ईयर्स एगो थीकोडोंट खत्म हो गए, थीकोडोंट खत्म हो गए और लिजार्ड जैसा शेप आया। देखो साइज को टॉलरेट ही नहीं कर रहा था, शायद साइज को टॉलरेट ही नहीं कर रहा था नेचर, नेचर का सिलेक्शन प्रेशर आया होगा तो वो लिजार्ड की तरह छोटे हो गए थोड़े। लेकिन ये जो थीकोडोंट थे, मैं समझता हूं कि ये थीकोडोंट दांत बड़े मजबूत रहे होंगे थोड़े से, तो उसका कंपैरिजन करते हैं। पर्मियन में देखो आर्बोरेसेंट, लाइकोपोड और सीड और फर्न ये खत्म होने के कगार पे आ गए। सीड फर्न वहां से डेवलप होना एक्चुअल शुरू हुए हैं जुरासिक के बाद। देखो सीड फर्न से एक पतला सा डंडा निकला है लेफ्ट हैंड पे, सीड फर्न, एक तरफ साइकेड निकले और एक तरफ डाइकॉट निकले, वो डेवलप ही शुरू होना तब हुए जब जुरासिक वाला पीरियड खत्म होने के बाद, डायनासोर्स खत्म और तब भैया फिर वो शुरू हुए हैं डेवलप। तो ये बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन कंपैरिजन करने के लिए दिया गया। और आपको लग रहा होगा कि वो जो लेफ्ट हैंड पेज पे शेप बने अलग अलग, कहीं ब्रॉड बना है, कहीं पतली लाइन बनी है, कहीं फ्लैट बना है, कहीं लैंप जैसा बना है, बीच में कोनिफर जो लाइटिंग की तरह दिख रहा है, दोस्त वो उसके गोल्डन पीरियड को बता रहा है। पतली लाइन लगी मतलब वहां वो सर्वाइव कर रहे थे धीरे 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 और फिर एकदम से बढ़ गए। मतलब मेरा कहने का, यदि यहां से ऐसा ओरिजिन हुआ है, पतली लाइन दिखाई गई, और उसके बाद ये एकदम से ऐसे हो गए, मतलब इस पीरियड के बाद उनका गोल्डन पीरियड आया, वहां से बढ़ना शुरू हुआ। वो सिर्फ ऐसा खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं बनाया है, वो लॉजिकली बनाया गया पेज। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. परफेक्ट। तो ऐसे सवाल में इसमें क्या आ सकता है? सवाल ये आ सकता है कि जो आज के ब्रायोफाइट्स हैं, इनके मोस्ट प्रीवियस एंसेस्टर्स कौन है? डायनासोर। अरे राम स्वामी, मैं पूछ रहा हूं प्लांट और तू जा रहा है। Chlorophyte ancestors. परफेक्ट Chlorophyte. परफेक्ट। क्लोरोफाइट्स। मोस्ट एंसेस्टर्स हैं क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, क्योंकि वहां से आप देखो कि एरो निकलता हुआ दिख रहा होगा आपको, पतला सा। Am I right? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. और वहीं पर यदि आप पूछे हर्बेशियस लाइकोपोड और आर्बोरेसेंट लाइकोपोड, तो उनका ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स। ट्रैचियोफाइट। और फर्न के लिए कौन? साइलोफाइटॉन। इज इट? Yes, sir. Yes. अब देखिए मजेदार बात, देखिए पेज नंबर 138, वो प्लांट वाले के नीचे। Slowly, single-celled organisms became multicellular life forms. By the time 500 million years ago, invertebrates were formed and active. Jawless fish probably evolved around 350. Highlight. Jawless fish probably evolved around 350 million years ago. Seaweeds and few plants existed probably around 320 million years ago. But we are told that the first organisms that invaded land were plants. They were widespread on land when animals invaded land. Fish with stout and store fins could move on land and go back to water. Dekho. Highlight. Fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. This was about 350 million years ago. Reptilia का evolution. In 1938, a fish caught in South Africa happened to be a coelacanth, which was thought to be extinct. These animals called low fins evolved into first amphibians that lived on both land and water. तो एक फिश मिली जो ऐसा लगता था कि वो वहां से गायब, जो एक्सटिंक्ट हो गई, वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई होगी बेसिकली, क्या पता वो रेप्टाइल की तरह बन के बाहर आ गई होगी। अंडरस्टूड? There are no specimens of this left with us. However, these were ancestors of modern day frog and salamander. These amphibians evolved into reptiles. They lay thick-shelled egg which do not dry up in sun, unlike those of amphibians. लो, adaptation देखो कितना खूबसूरत होता जा रहा है।
यदि लैंड पर आ गए तो अंडों की शेल भी थिक होने लगी, नहीं तो टेम्परेचर से टूट जाएंगे वो। पानी में थे तो ठीक है, थीन में काम चल जाता था क्योंकि पानी वाटर थोड़ा सा सॉफ्ट मीडियम था ना उनके लिए। लैंड पे यदि रहना है तो बच्चे बचाना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नहीं बचाओगे तो सनलाइट में ब्रेक हो जाएंगे, अंडे फूट जाएंगे, मर जाएंगे बच्चे। तो यहाँ डेवलप होते होते उन्होंने एम्फीबियंस जो डेवलप हुए रेप्टाइल्स की तरह, उन्होंने अपने अंडों के शेल को भी थिक कर लिया। We only see their modern day descendant, the turtle, tortoise, and crocodile. In the next 200 million years or so, reptiles of different shapes and size dominated on Earth. Giant ferns were present, but they all failed to form coal deposits slowly. वो सब नीचे कोल की तरह जमा होते रहे. Some of these land reptiles went back into water. लो, वो लैंड पर आए जरूर होंगे, but some of them reptiles went back into water to evolve into fish-like reptile, probably 200 million years ago. Ichthyosaurs. The land reptile were, of course, the dinosaurs. जो रह गए वो डायनासोर, वो बेचारे निपट गए। तो समझदार तो वो थे जो वापस पानी में चले गए होंगे और फिश की तरह ही डेवलप होने का सोच लिया हुआ, क्योंकि जो रेप्टाइल की तरह डेवलप होना, डायनासोर्स की तरह आए, वो रहे होंगे, कितने साल रहे अपने को नहीं पता, बट निपट गए क्योंकि वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को टॉलरेट नहीं कर पाए। द बिगेस्ट ऑफ देम टायरानोसॉरस, ये लिख चुके अपन, about 20 feet in height and had huge fearsome dagger-like teeth. About 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth. We do not know the true reason. Some say climatic change. Some say most of them evolved into birds. कुछ का कहना है कि नहीं, निपटे नहीं वो बर्ड की तरह डेवलप हो। The truth may lie in between. हो सकता है कुछ बर्ड की तरह डेवलप हो गए, हो सकता है कुछ वापस चले गए, और हो सकता है कुछ क्लाइमेटिक चेंज की वजह से निपट भी गए। Small size reptiles of that era still exist today, like a lizard. क्योंकि उनमें के कुछ तो आज भी जिंदा है, छोटी लिजार्ड जो घर में होती है, हाउस लिजार्ड, कैमलियन, कुछ तो आज भी है। मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ टाइम के साथ क्लाइमेट ने निपटा दिया होगा, कुछ बर्ड्स बन के उड़ गए होंगे, कुछ वापस पानी में चले, गॉड नोस क्या ट्रूथ है, बट हाँ हुआ तो यही होगा 100%। The first mammal were like shrews, highlight. Their fossils are small size, highlight. Mammals were viviparous and protected their unborn young inside the mother's body. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least. When reptiles came down, mammals took over this earth. जब reptiles कम हुए तो mammals आने लगे. There were in South American mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Due to same continental drift, pouch mammals of Australia survived because of lack of competition. मतलब होता गया, यूएस इससे अलग हुआ, ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, अलग अलग होते गए, अलग अलग मूव करते गए, वहां जाकर वो मार्सुपियल की तरह डेवलप हो गए, इधर जाकर वो और डेवलप हो गए। मतलब डिपेंड करता है, जैसे जैसे वो रेडिएट होते गए वैसे वैसे वो डेवलप होते गए। Lest we forget, some mammals live wholly in water. Whales, dolphins, seals, sea cows. Evolution of horse, elephant, dog are special stories of evolution. You will learn about these in higher classes. The most successful story in the evolution of man with language, skills, and self-consciousness. और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है आप और मैं, जिसने लैंग्वेज सीखी, जिसने बोलना सीखा, जिसने सिविलाइजेशन सीखा। ऑफ कोर्स द मोस्ट ब्रिलियंट क्रिएशन ऑफ द ब्रह्मा, और आई शुड से व्हाटएवर द धर्मास आर देयर। यीशु मसीह ने कुछ कहा होगा, किसी और ने, बाइबल ने कुछ और कहा होगा, गीता ने कुछ और कहा होगा, व्हाटएवर इट इज, बट द brilliant creature in front of me, that is in the form of class 12th. Is it? Agreed? Yes, sir. Agreed? Yes, sir. Perfect. अब इसको पूरा बताने के बजाय, मतलब ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, मैं तो एक सीक्वेंस लिखा दे रहा हूं, एक सीक्वेंस लिखा दे रहा हूं बच्चों, जो यहीं पर लिख लेंगे आप, इसके पास ऊपर ये लिखा हुआ मैंने, है ना, डायग्राम के ऊपर लिख लेंगे। एक न्यूमोनिक लिखवा दे रहा हूं मैं आपको, एक न्यूमोनिक लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद में समझा रहा हूं। लिखिए, हर कोई न्यूमोनिक का वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल, जहां मैं बोलूं, है ना, डॉक्टर रामा, डॉक्टर का डी कैपिटल, रामा का आर कैपिटल, डॉक्टर रामा, व्हाइट कलर पे लिखिए, अच्छे से दिखेगा, डॉक्टर रामा, डी आर मतलब डी कैपिटल, रामा का आर कैपिटल, डॉक्टर रामा। कैन यू टेल मी व्हाट इज डी रिप्रेजेंट?
Dryopithecus. Dryopithecus. What is R? Ramapithecus. डॉक्टर रामा, अब कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे. विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, ए कैपिटल. विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, ए कैपिटल. टेकिंग, नो कैपिटल. टेकिंग, TAKING, टेकिंग. डॉक्टर रामा विजिटेड ऑस्ट्रेलिया टेकिंग हैंडीकैम, H कैपिटल. टेकिंग हैंडीकैम मतलब डॉक्टर रामा ऑस्ट्रेलिया को विजिट किया बाय टेकिंग हैंडीकैम. मेड इन जावा, जावा का J कैपिटल. मेड इन जावा, मेड इन जावा, J कैपिटल. डॉक्टर रामा विजिटेड ऑस्ट्रेलिया टेकिंग हैंडीकैम मेड इन जावा. इंस्टीड कुछ नहीं लिखना. इंस्टीड ऑफ प्लेन, इंस्टीड ऑफ हैविंग न्यू कैमरा, हैविंग का H कैपिटल. हैविंग का H कैपिटल. इंस्टीड ऑफ हैविंग न्यू कैमरा फ्रॉम मॉडर्न मैन, M कैपिटल. फ्रॉम मॉडर्न मैन, मॉडर्न का M कैपिटल. रिपीट कर रहा हूं. डॉक्टर रामा विजिटेड ऑस्ट्रेलिया टेकिंग हैंडीकैम मेड इन जावा इंस्टीड ऑफ हैविंग न्यू कैमरा फ्रॉम मॉडर्न मैन. अब डॉक्टर का D ड्रायोपिथेकस, रामा का R, गोला लगा लो, अल्फाबेट को गोला लगा लो. डॉक्टर का D ड्रायोपिथेकस, रामा का R रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलिया का A ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैंडीकैम का H होमो हैबिलिस, जावा का J जावा मैन, जावा का J जावा मैन. हैविंग का H होमो इरेक्टस, हैविंग का H गोला लगा लो, हैविंग का H होमो इरेक्टस. न्यू कैमरा का न्यू कैमरा का N कैपिटल लिखा गया. न्यू कैमरा का N भी कैपिटल रखो. हैविंग न्यू कैमरा का N, क्योंकि यह है निएंडरथल मैन. सर्कल कर लो उसको. निएंडरथल मैन. कैमरा का C क्रोमैग्नन, कैमरा का C क्रोमैग्नन और मॉडर्न मैन तो मॉडर्न मैन. यानी सीक्वेंस हो गया ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, जावा मैन, होमो इरेक्टस मैन, निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नन मैन और मॉडर्न मैन. अंडरस्टूड? Yes. मुझे जो बच्चों ने बताया था लास्ट ईयर वो भी शेयर कर देता हूं. ये लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes. बच्चों ने कुछ बनाया था. बच्चों ने बनाया था डॉक्टर रामा एंड हनुमाना ज्वाइन पीडियाट्रिक्स न्यूनेट चाइल्ड मैन. अब आपको जो याद रह जाए, डॉक्टर रामा एंड हनुमाना ज्वाइन पीडियाट्रिक्स. राम और हनुमान ने ज्वाइन किया पीडियाट्रिक्स को न्यूनेट चाइल्ड मैन, जो नया नया बना था और वो इंसान का बच्चा था. चाहे जैसा याद कर लो. लिखवाओ क्या? दूसरा भी की जरूरत नहीं है. सर लिखवा दो ना. डॉक्टर रामा एंड हनुमाना join pediatrics neonate child man. असाइनमेंट टोटल कितने हैं वो निकल के आ रहे हैं. ड्रायो, रामा, ऑस्ट्रेलो, होमो हैबिलिस, जावा, उसी को होमो इरेक्टस कहा गया, फिर निएंडरथल, क्रोमैग्नन और मॉडर्न. टोटल 8. Am I right? Am I right? Yes, sir. Yes. इन 8 का मुझे कंपैरिजन चाहिए. इन 8 का मुझे 5 पॉइंट पर कंपैरिजन चाहिए. पॉइंट नंबर 1, वीपन्स. वो कौन से वीपन इस्तेमाल करते थे? कौन स्टोन वीपन का इस्तेमाल करता था, कौन कैसे करता था? 8 का कंपैरिजन रहेगा. नंबर 2, फूड हैबिट, मतलब वेज खाते थे कि नॉन वेज खाते. फूड हैबिट पहला हो गया.
क्या लिखा पहला? दैट इज वीपन्स। Weapons. दूसरा फूड हैबिट। तीसरा हैबिटाट, कैसे रहते थे, मतलब शेल्टर्ड थे या ओपन में रहते थे, हैबिटाट। नंबर 4 क्लोथिंग्स, मतलब क्लोथिंग उस समय तो नहीं थी, मतलब बार्क को लपेट कर कौन किया, कैसे किया, क्लोथिंग्स। नेक्स्ट ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी मतलब किसकी 400 सीसी, किसकी 600 सीसी, किसकी 1600 सीसी, ये सब आपको बताना है। और क्या दिया हुआ इसमें, कुछ केव्स में रहते थे, मतलब वो हैबिटाट में लिखोगे आप, केव्स में रहते थे कुछ, और ब्रेन कैपेसिटी भी लिख ली। Place of origin. नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट, डन। तो ये 5 पॉइंट्स पर इन 8 का कंपैरिजन लिखकर मुझे दो। खाते के आपने लिख लिया, वीपन्स का लिख लिया, हंटिंग का हो गया, और ब्रेन कैपेसिटी हो गई, हो गया, सारा ही हो गया। ये असाइनमेंट है आपका, मैं नहीं लिखवाऊंगा, चाहे जहां से ढूंढो इन पर कंपैरेटिव चार्ट बनाओ कि कौन। अच्छा, एग्रीकल्चर का भी था एक, किसने एग्रीकल्चर शुरू किया, एक और पॉइंट लिख लो, एग्रीकल्चर किसके समय से एग्रीकल्चर शुरू हुआ, ये आपको पता चल जाएगा। बराबर। और जनरल रिमार्क, आपको कंपैरिजन करते समय कुछ ऐसा लगे कि इन 5 पॉइंट में नहीं बैठ रहा, 5-6 पॉइंट, उसको अलग से रिमार्क करके कुछ नहीं। सो दैट्स ऑल माय डियर, अंडरस्टूड डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। मेरा क्लास कब है, कल है या डे आफ्टर टुमारो? सैटरडे। सैटरडे। तो सैटरडे तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सैटरडे केवल डीसी होगी, इवोल्यूशन, कंप्लीट इवोल्यूशन। मैं तो कहूंगा कंप्लीट तीनों एक बार पढ़ डालो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, और ये पहले डीसी करेंगे इवोल्यूशन की, वो खत्म हो जाए तो डीसी करेंगे जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर, यानी सैटरडे अपना कंप्लीट डीसी ही होगा। परफेक्ट। Yes, sir. Yes. Any doubt in today's Yes, sir. session? Any doubt in today's session? Chaliye. All the best. See you in the very next class. Host can end the meeting.